میاں والی کے معروف گلوکار شرافت علی خان کی گاڑی نہر میں گر گئی۔ گاڑی میں موجود شرافت علی خان 7 ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں شرافت علی خان کا بھائی انور علی بھی شامل۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، میاں والی کی فضا سوگوار ہو گئے۔ میاں والی کے معروف گلوکار شرافت علی خان کی گاڑی نہر میں گر گئی۔ گاڑی میں موجود شرافت علی خان 7 ساتھیوں سمیت جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں شرافت علی خان کا بھائی انور علی بھی شامل۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک حادثے سے میاں والی کی فضا سوگوار ہو گئی۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی۔ ڈالر سستا ہونے سے بھی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ تاجروں کے ساتھ چھوٹے صنعتکار بھی پریشان۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے فراز رمضان سے۔ فراز بتائیے گا۔ بالکل ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی دیکھنے میں مل رہی ہے، لیکن اشیاء ضروریات کی جو قیمتیں ہیں ان میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں دیکھنے میں مل رہی۔ ڈالر جب مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر باتیں کرنے لگتی ہیں۔ میں اس وقت جو ہے وہ لودھی کالونی موڑ پر موجود ہوں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس چیمبر آف اسمال ٹریڈر ملتان کے صدر ظفر اقبال صدیقی صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ جانتے ہیں ظفر بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ، جو ہے وہ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی دیکھنے میں مل رہی ہے لیکن اشیاء ضروری ہیں ان کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی؟ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اشیاء ضروریہ جو ہے ان کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ حالانکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ جو ہے 50 روپے کم ہو چکا ہے، جبکہ انٹر بینک ریٹ میں 25 روپے کے قریب کم ہو چکا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ہم تو ویسے بھی تاجران کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی مہنگائی ہے یہ مینوفیکچرنگ لیول پہ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو ایک پرائس کنٹرول اتھارٹی بنانی چاہیے تاکہ وہ صنعتکاروں کو اور تاجروں کو بٹھا کے ریٹ فکس کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں جی وہ جو تاجر ہے یہ منافع خوری میں مبتلا ہے اور صنعتکار نہیں ہے۔ تو یہ ایک اکٹھا ہونا چاہیے، یہ دونوں کو اکٹھا بٹھانا چاہیے، ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، پرائس فکسیشن اتھارٹی۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ ان کو فکس کیے جائیں، پراپر جو ہے وہ چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، اس سے جو ہے وہ عام آدمی پر، غریب عوام تک جو ہے وہ ڈالر کی کمی کے باعث جو ہے وہ ریلیف چیزوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ فراز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں بورے والا میں لیو ان کیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج میں اساتذہ سمیت طبقہ ملازمین کی بڑی تعداد شریک۔ مظاہرین کی مطالبات نہ ماننے پر تعلیمی سرگرمیاں بند کرنے کی بھی دھمکی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کاشف چودھری سے۔ کاشف بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، لیو انکیشمنٹ اور پینشن کی پالیسی میں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ اساتذہ کرام اور بلدیہ کے ملازمین، ایپکا کے ملازمین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں پریس کلب کے باہر، اور دونوں ملازمین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اساتذہ کی جانب سے جو ہے وہ اسکول کو پرائیویٹ کرنے کے خلاف بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اساتذہ کرام کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، فیمیل ٹیچر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ وکیل بٹی صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ رات ہمارے جو عقیقہ کے پلیٹ فارم سے لوگ لاہور احتجاج کر رہے تھے اور وہ پرامن احتجاج ہو رہا تھا۔ رات کے 1:30 بجے ان سب کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے بورے والا کے 275 ای کے ہیڈ ماسٹر خالد صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن لاہور کے قریبی جتنے تھانے ہیں ان میں کسی میں وہ موجود نہیں ہے، ان کی انٹری نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اغوا ہی ہے، میں اس کو اغوا کہوں گا، اور ان کو فوری طور پر رہائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو لیو ان کیشمنٹ میں پینشن رولز میں جو ترمیم کی جا رہی ہیں وہ صرف اساتذہ کا نہیں، پنجاب کے 15 لاکھ سے زائد جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بچوں کا معاشی قتل ہے، ان کے بچوں کے مستقبل پر ایک تالا لگا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب لوگ در بدر ہوں گے تو پھر یہ وہ بیچارے کدھر جائیں گے، جب ان کو بچے کی تعلیم کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے ہی نہیں ملیں گے سفیشینٹلی تو وہ کیا کریں گے؟ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا جو لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز جو پہلے سے چل رہے تھے وہی دوبارہ سے بحال کیے جائیں اور قائدین جو ہے ان کو فی الفور جو ہے رہا کیا جائے۔ سر اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اگلا لاحق عمل کیا آپ؟ جی اس کا لاحق عمل جو اگلا ہے وہ ہم آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں۔ ابھی ہماری ایم سی ماڈل ہائی اسکول بورے والا میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام ایسوسیشن جو ہے پی ٹی یو اور ایس سی ایس اور ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن وغیرہ موجود تھی۔ ہم سب کا جو ہے یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ آج شام تک مطالبات پورے نہیں ہوتے تو کل سے ہمارا تعلیمی جو ہے وہ بائیک آؤٹ کریں گے۔
और दरस व तदरीस का सिलसिला जो है हमारे मुतालबात की मंजूरी तक मुअत्तल हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर दोनों के एक ही मुतालबे हैं कि जो कायदीन गिरफ्तार किए गए उनके फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए, इसके साथ साथ जो है वो लीव इनकैशमेंट और पेंशन के रूल में तब्दीली की गई, इसको फिलफौर जो है हुकूमत। असातिज़ा का एहतजाज जारी है। काशिफ आगाह कर रहे थे। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, स्कूलों की निजकारी और लिव इनकैशमेंट कानून नामंजूर। कोटअदू में भी एजुकेशन स्टाफ का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शफकत मौलाना से। शफकत, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में जो है असातिज़ा की गिरफ्तारी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन में कटौती और जो है स्कूलों की निजकारी के खिलाफ आज जो है स्कूल के जो असातिज़ा हैं वो यहाँ पे डीसी ऑफिस कोटअदू में सरापा एहतजाज है। मजीद हमारे साथ कुछ असातिज़ा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम असातिज़ा कराम यहाँ जमा हैं। उसका मकसद ये है, हमारे कुछ कवानीन जो उन्होंने तरमीम कर दी हैं, जिनमें लीव इनकैशमेंट रूल सबसे पहले, उसके बाद पेंशन रूल है। असातिज़ा के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ लाहौर में की गई हैं, असातिज़ा का मुआशी कत्ल, और उसके अलावा स्कूलों की सबसे जो अहम चीज़ है वो निजकारी है। जब ये हमारे स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो बेसिकली ऐसे मुआशे से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसमानदा और गरीब हैं। अगर ये तरमीम कर दी गई तो किस तरह से हमारे वो बच्चे तालीम जारी रख सकेंगे। हम ज़िला कोटअदू के डीसी साहब से और तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएं। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, हम तमाम तर अपनी सरकारी जो डेंगी एक्टिविटी है, तमाम अपनी जो तालीमी सरगर्मियां हैं, उनसे हम बाइकआउट रखेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ एजुकेशन स्टाफ मौजूद था। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं। अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो ये एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे और स्कूल को भी मुकम्मल तौर पर। जी शफकत, बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ वाली में मुतालबात की मंजूरी के लिए खवातीन टीचर्स भी सरापा एहतजाज हैं। डीसी ऑफिस पहुंचकर खवातीन टीचर्स ने धरना दिया। आपको बता रहे हैं, पंजाब भर में असातिज़ा का एहतजाज जारी है। इस हवाले से मियाँ वाली में भी मुतालबात की मंजूरी के लिए खवातीन टीचर्स सरापा एहतजाज हैं। डीसी ऑफिस पहुंचकर खवातीन टीचर्स ने धरना दिया। इस हवाले से मुजाहिरीन का क्या कहना था, अख्तर मजाज से जानेंगे। अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेंशन में कटौती और लीव इनकैशमेंट के रूल्स के खिलाफ खवातीन टीचर जो हैं वो भी सड़कों पे आ चुकी हैं और इन्होंने फ्लैक्सेस उठाए हुए हैं, एक मुल्क दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर। कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, ये इस हवाले से क्या कहती हैं, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? हम यही कहना चाहते हैं कि एज अ टीचर्स हम बिल्कुल भी सड़कों पर आना नहीं चाहते। हम अपने स्टूडेंट्स का जो तालीमी उनकी जो टाइम पीरियड है उसको इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमारे साथ जब इस तरह जुल्म होगा, जब आपको हक नहीं मिलता तो मजबूरी होती है कि आप पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर आते हैं। और हमें भी जब बिल्कुल मजबूर किया गया है तभी हम सड़कों पर आए हैं, वरना कोई भी टीचर जो कौम का ममार होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि वो बच्चों का नुकसान करे या वो कॉलेज क्लासेस का बाइकआउट करे। लेकिन जब आप एहतजाज कर करके मजबूर हो जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो फिर एक ही आपके पास यही ऑप्शन रह जाता है कि आप क्लासेस का बाइकआउट करें, आप सड़कों पर आएं और अपना एहतजाज। जी, तमाम जब ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो यही ऑप्शन रह जाता है। क्या कहेंगे आप? वी आर टीचर्स एंड वी वांट टू टीच। हम बिल्कुल भी अपनी क्लासेस बंक नहीं करना चाहते, क्लासेस को फ्री नहीं छोड़ना चाहते, बट हम मजबूर हो गए। हमें इतना मजबूर किया गया कि अपने राइट्स के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा। कोई अगर हम आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा मसला हल नहीं होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये लीव इनकैशमेंट का जो रूल बनाया गया है, ये टीचर्स और मुल्क और कौम को जो मेहमान हैं उनका मुआशी कत्ल है और इनके मुतालबात जब तक तस्लीम नहीं होंगे तब तक ये सड़कों पर रहेंगे और इनका एहतजाज और धरना जारी रहेगा। खवातीन भी सरापा एहतजाज हैं। अख्तर मजाज आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अख्तर आपका। लिया में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। रैली में मर्दो खवातीन मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि लाहौर में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां नाकाबिले मजम्मत हैं। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते स्कूल समेत तमाम दफातर बंद रहेंगे। आपको बता रहे हैं, लिया में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए हैं। रैली में मर्दों खवातीन मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि लाहौर में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां नाकाबिले मजम्मत हैं।
बखर में भी असातिज़ा और अबका मुलाज़मीन अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। दफातर की तालाबंदी, 2 घंटे तदरीसी निज़ाम भी बंद रखा। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात असलम बलोच से जानेंगे। असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह बखर में भी एपका की कॉल पर क्लर्क एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हुई है। वहां पर असातिज़ा ने भी अलामती एहतजाज किया है। कौम के मार इस वक्त भी उन्होंने क्लासों का तदरीसी निज़ाम का बाइकाट किया है। वो अपने मुतालबात के हक में जो है वो यहाँ पे बैठे हैं और इसके साथ उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिन पर मुतालबाती नारे भी दर्ज हैं। मेरे साथ असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या मुतालबा करते हैं। बड़े अरसे से एहतजाज हो रहा है, क्लर्क भी एहतजाज कर रहे हैं, टीचर भी मैदान में, मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे, क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा कर रहे हैं कि जो पेंशन में रूल की तरमीम हो रही है, तब्दीली हो रही है और हमारी ग्रेजुएटी भी कम की जा रही है और हमारे स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम इस तरह एहतजाज करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो एहतजाज है वो पंजाब गवर्नमेंट के पेंशन रूल्स में तरमीम नामंजूर करने के लिए है और दूसरा लीव एनकैशमेंट और हमारा जो इदारों को प्राइवेट सेक्टर में दिया रहा है तो उसमें एहतजाज कर रहे हैं कि दूसरे सूबों की तरह पंजाब में भी वो मुलाजमीन के फेवर में या उसको इंसाफ किया जाए, ज्यादती न की जाए। हमारा आज का यही एहतजाज है। हमारा यही एहतजाज है। जो असातिज़ा हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक में और कौमें जो हैं वो इल्म के बगैर जो है वो तरक्की नहीं कर सकती और इल्म के जेवर से रास्ता करने वाले असातिज़ा वो भी अपने हक में एहतजाज कर रहे हैं और उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे। असातिज़ा का ये मुतालबा है कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज का सिलसिला जारी है। असातिज़ा के साथ क्लर्क्स भी सरापा एहतजाज हैं। असलम बलोच, बहुत शुक्रिया। डीजी खान में भी लिव एनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ क्लर्क्स सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने एपका ऑफिस में एहतजाज किया। आपको बता रहे हैं क्लर्क्स का एहतजाज जारी है। इस हवाले से आशिर अशफाक से तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एपका सरापा एहतजाज है। एपका मुलाजमीन की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। कचहरी रोड पर मुलाजमीन तमाम मौजूद हैं। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोटेस्ट जो है ना ये शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है क्योंकि रात 2 बजे हमारे जो कायदीन अगीगा और एपका हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। हम पहले चाह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज जो है हमारा चल रहा था और पुरअमन एहतजाज को हुकूमत पंजाब ने पुरतशद्दुद एहतजाज में कन्वर्ट किया है। तो हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये हमारे जो गिरफ्तार लीडरान हैं उनको रिहा नहीं किया जाता और जो नोटिफिकेशन ने लीव एनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में अमेंडमेंट का किया है वे ड्रा नहीं होता, वो उस वक्त तक हमारा एहतजाज भी चलता रहेगा और इंशाअल्लाह हमारा प्रोटेस्ट भी चलता रहेगा। और आज जितने लोग हैं इससे कल इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे और हम भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे लगातार इंशाल्लाह एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते और जब तक हमारे गिरफ्तार जो हमारे कायदीन हैं उनकी रिहाई नहीं होती। इंशाल्लाह अब हमारा जज्बा मजीद बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जी? मैं गुजारिश करता हूं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि सो मोटो नोटिस लें और ये काला कानून जो हम पर नाफिज किया गया है इसको ख़त्म किया जाए और हमारे जो मुलाजमीन गिरफ्तार हुए उनको रिहा किया जाए। बिल्कुल, क्या मुतालबात है? बिल्कुल हम यही मुतालबा करेंगे कि जो हमारे एहलकार भाइयों को गिरफ्तार किया गया है रात को अंधेरे में उनको फौरन रिहा किया जाए और पेंशन रूल्स और जो ये अमेंडमेंट्स की गई हैं इनको फौरन वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया। एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। यूसुफ भाई, क्या आज के एहतजाज के हवाले से? आज का एहतजाज हुकूमत पंजाब के गलत इकदाम की वजह से है जो कि हमारे निहत्ते और पुरअमन एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन को अरेस्ट करके उन्होंने किया है। इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक लड़ेंगे अपने मुतालबात के। मुतालबात के हक में रैली निकाली जा रही है। इनका यही कहना है जो गिरफ्तारियां की गई हैं फौरी तौर पर रिहा किया जाए और एपका इस टाइम सड़कों पर है और आशिर अशफाक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो असातिज़ा लिव एनकैशमेंट और पेंशन की वजह से एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी जानिब 2017 के बाद भर्ती होने वाली असातिज़ा के लिए भी बुरी खबर है। असातिज़ा को मिलने वाला क्वालिफिकेशन अलाउंस कालादम करार दे दिया गया है। अब तक मिलने वाला असातिज़ा से क्वालिफिकेशन अलाउंस वापस लिया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक क्वालिफिकेशन अलाउंस महकमाना रूल्स की खिलाफ वर्जी है। आपको बता रहे हैं 2017 के बाद भर्ती होने वाले असातिज़ा के लिए बुरी खबर है। असातिज़ा को मिलने
वाला क्वालिफिकेशन अलाउंस कालादम करार कर दिया गया है। अब तक मिलने वाला असातिज़ा को क्वालिफिकेशन अलाउंस वापस लिया जाएगा, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक क्वालिफिकेशन अलाउंस महबकाना रूल की खिलाफ वर्जी है। फंड्स की कमी, गफलत और लापरवाही का मामला। ट्रैफिक पुलिस बहावलनगर की गाड़ियां धक्का स्टार्ट हो गई। शहरी पुलिस की खराब गाड़ियों को धक्का लगाने पर मजबूर है। खराब गाड़ियों के साथ जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां भी मुतासिर हुई हैं। शहरियों का आला अफसरान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां अब धक्का स्टार्ट हो गई हैं। फंड्स की कमी और गफलत और लापरवाही का मामला है। ट्रैफिक पुलिस बहावलनगर की गाड़ियां धक्के से स्टार्ट होने लगी हैं। मुल्तान में नई हल्का बंदियों के बाद सियासी ढेरों पर कहीं गहमा गहमी तो कहीं उम्मीदवार मायूस नजर आते हैं। साबका PP 213 के उम्मीदवार मलिक खानी की रूही से गुफ्तगू, इनका इस हवाले से क्या कहना था, वसीम शहजाद से जानेंगे। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन के इम्कानात जाहिर किए गए, तो दूसरी जानिब हमने हल्का बंदियाँ जो हैं वो भी देखी। मुल्तान की अगर बात करते चले सूबाई हलकों की, तो सूबाई हलके में नई हल्का बंदियों के 22 PP 213 जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। और PP 213 की अगर बात करते चलें तो PP 213 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो मलिक खानी थे। इस हल्के के कम होने की वजह से उम्मीदवारों पे किस हद तक जो है वो असर हुआ, इस पर बात करने के लिए मलिक खानी साहब जो है वो हमारे हमरा मौजूद हैं। खानी साहब, माजी में भी हल्का बंदियाँ होती रही हैं, लेकिन ऐसी कभी हल्का बंदी नहीं हुई जो पूरे का पूरा हल्का ही जो है वो गायब हो जाए। आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, हल्के जो हैं वो कम हो रहे हैं, क्या पॉलिटिकल डिसीजन रखते हैं? हमारा हल्का यहाँ पर 213 था कि जो मुकम्मल तौर पर जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसकी जो यूसीएं थी वो तमाम दूसरे हल्कों में मर्ज कर दी गई, और किसी एक जगह पर मर्ज नहीं की गई बल्कि मुख्तलिफ हल्कों में मर्ज कर दी गई हैं। तो हम तो बड़े अरसे से इसमें मेहनत कर रहे थे, और पाकिस्तान पीपल पार्टी को हमने उजागर किया। यहाँ पर हमने बड़ी मेहनत की अपने हल्के में, मगर वो अल्लाह की तरफ से बस हुक्म नहीं था और नसीब में नहीं था। तो अभी फ़िलहाल देखें अब क्या सिनेरियो बनता है और पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला करती है इसमें से, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या फ़ैसला करते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैदान में उतरेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कि कौन से हल्के से हमें वो लड़ाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, खैर व बरकत होगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा मलिक खानी मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि नई हल्का बंदियों के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक हल्का जो है वो जम हो गया, और हल्का जो है वो गायब होने की वजह से खासा मुश्किलात का सामना जो है वो उम्मीदवारों को करना पड़ रहा है। लेकिन अगर सूबे की बात करते चलें तो सूबे के हवाले से सबसे संजीदा जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। अगर पाकिस्तान पीपल्स कामयाब होती है तो जनूबी पंजाब में अलग। वसीम शहजाद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका।